Welcome to Students Wala. Today we are going to begin with our concept session 2 of rational numbers. Today what we are going to learn is finding rational numbers between any two given rational numbers. Okay, let's start it. Okay, so I'll be teaching you 3 methods through which you can find a rational number between any two given rational numbers. So are you all ready? You should be, okay? I'm going to tell you about it and it's going to be a very nice session, okay, all of you? So see, the method 1 is very easy. You all have learnt about it in your standard 8th also, okay? Let me rewind the definition of rational numbers to you all. ठीक है, क्या होता है rational numbers? The numbers which can be represented in the form of P by Q, where P and Q will be integers and Q will not be equal to 0. This is the proper definition of rational numbers, you all know. Alright, let's come to the point here. क्या हो गया? Yeah, just a minute. Okay, now look at here. This method is something like, you know, median mode. ये आपने पढ़ा है क्या? मीन क्या होता है? मीन क्या होता है? मीन बेसिकली एवरेज होता है, राइट? अगर मुझे एवरेज निकालना हो, लेट्स से a and b, I have these two numbers a and b and I have to take out the average of this. What will be the average? a plus b by 2, या फिर आप इसको लिख सकते हो हाफ इंटू a plus b. करेक्ट? यही करना होता है. हम क्या करते हैं कि उन दो नंबर्स का एवरेज निकालते हैं. एवरेज निकालने पर क्या मिल जाता है? मुझे मीन मिल जाता है. जैसे कि मैंने बोला आपको a एंड b, लेट्स से ऑन द नंबर लाइन ये मेरा a है, ये b है, ठीक है. मैंने इन दोनों का एवरेज निकाला, क्या आया आंसर? a प्लस बी बाई 2. तो मतलब वो इन दोनों के बीच लाई करेगा. a प्लस बी बाई 2 कहाँ लाई करेगा? इन दोनों नंबर्स के बीच लाई करेगा, ठीक है. वैसे ये तो मैंने एक रैशनल नंबर निकाला. अगर मुझे कहा जाता कि फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन a एंड b, एक तो मेरे पास ये हो जाता, क्योंकि दिस विल गिव मी द एवरेज, द मिडिल नंबर. एंड इफ आई हैव टू फाइंड वन मोर रैशनल नंबर, व्हाट विल आई डू? या तो मैं इन दोनों के बीच एक नंबर, ईदर आई कैन फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू, और आई कैन फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू. करेक्ट? दिस इज व्हाट आई कैन डू. लेट्स सी व्हाट विल आई डू हियर. So let me find rational numbers between both. ठीक है, इसके बीच में निकालेंगे, इसके बीच में निकालेंगे. इसके बीच निकालते हैं पहले. क्या आ जाएगा? Let me come use a fresh page. ठीक है. a plus b by 2 मेरा पहला नंबर था. This was my first number. ठीक है, किसके बीच? a and b के बीच. ये मेरा पहला नंबर क्या था? a plus b by 2. अब मुझे इसके और इसके बीच निकालना है, ठीक है. तो क्या करेंगे? सेम प्रोसेस. We'll add these two and divide it by 2. ठीक है, तो मेरे को इन दोनों नंबर के बीच एक रैशनल नंबर यहाँ निकालना है. ये कैसे निकलेगा? इन दोनों का मीडियन होगा ये, ठीक है. इन दोनों का मीडियन क्या होगा? a प्लस b बाई 2. ये नॉर्मल एडिशन है, ये पता होगा ना. ये देखो बता देते हो, ये a बाई 1 है, ये a प्लस b बाई 2 है. LCM हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 इंटू a 2a, एंड ये a प्लस b. So what we get is 3a plus b by 2. तो इसके बीच एक नंबर कौन सा हो गया? 3a plus b by 2. ठीक है. अब एक और निकालना है. या तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसके और इसके बीच निकाल सकती हूँ एक, या मैं इसके और इसके बीच निकाल सकती हूँ एक, या मैं डायरेक्टली इसके और इसके बीच भी एक निकाल सकती हूँ, है ना. दिस इज सो, मतलब देर आर इन्फिनिटली मेनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर्स. So this is the formula used. Now let's come to some questions and some theory of this particular thing which I explained here. Okay. देखो. Here. यहाँ पर ये दिया हुआ है. इसको अच्छे से थोड़ा देखते हैं and then let's try to understand what's written here. See. Suppose we are required to find one rational number between two rational numbers x and y. In place of that, I gave you a and b, such that x is less than y. So we have 1 by 2 into x plus y as one rational number between the numbers x and y. Example. इसके basis पर there are some examples which are given over here. Let's try solving some examples for better practical knowledge. So the first question says
Find a rational number means only one rational has to be found. Find a rational number between 1 by 3 and 1 by 2. What is the process? Between x and y, one rational number we have to find, it is half into x plus y, correct? Let's do that. Half into x is what? 1 by 3, y is what? 1 by 2. Remember the condition, x should be less than y. So you see 1 by 2 is greater than 1 by 3, so this condition is suitable. Now 1 by 2 into, यहाँ से हो जाएगा 2, ये तो पता ही होगा ना कैसे कर रही हूँ मैं, into 5 by 6. The answer is 5 by 12. So one rational number between these two given rational numbers would be 5 by 12. Alright, let's move ahead then. So the answer to this question is 5 by 12. Now 2 by 3 and minus 3 by 4. Apply the same theory, but see here, what you see is y is less than this. So what we are going to do? Same process will be applied, half into x plus y. But here, when y was greater than x, we wrote y at the second place. But here x is greater than y. So we will write x at the second place. Okay, which means half into minus 3 by 4 plus 2 by 3. This is the process we have to apply over here. Now see. Minus 1 by 24. If you do this, you will get minus 1 by 24 as your answer. Okay. See the process, I am doing it step by step. Now, the next question is, now the third question is between, just a minute, between minus 2 and minus 3. Which is greater? Minus 2 is greater. Again you see x is greater than y. So we write x at the second place. Half into minus 3 plus minus 2. Correct? So answer will be minus 5 by 2. So now between these two, what is one rational number? Minus 5 by 2. Now these three particular questions which we did, there we found just one rational number between any two given rational number. Right? Now the questions which we'll be getting, there we'll have to find 5 rational numbers. Now look at this particular question. Here, you know, this way sometimes it is not much efficient to find, because we have to do a lot of calculations to find such numbers, right? Okay, let's solve this one with this method, and then the next method which we'll learn will be very efficient to solve such kind of questions. Let's move to another page to solve it. Okay. Okay, तो क्या करना है यहाँ पे 0 और 1 के बीच राशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं? 5 राशनल. करेक्ट? तो मेरे को क्या पता है यहाँ पर x is less than 1 minute. यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि x is less than y. तो वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई. तो फर्स्ट रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 0 प्लस 1 विच इज हाफ इंटू 1 by 2 हो जाएगा ना? ठीक है, हाफ इंटू 1 by 2. तो एक रैशनल नंबर 1 by 2 हो जाएगा. दूसरा रैशनल नंबर देखो, सेकंड क्या फाइंड कर सकते हैं? मैं एक नंबर लाइन बनाऊंगी ताकि ये मेरे लिए एफिशिएंट हो जाए. नीचे में ये था 0 1, इसके बीच मुझे क्या मिला? 1 by 2 मिला. ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच एक रैशनल नंबर फाइंड करूंगी. इन दोनों के बीच यहाँ पर क्या हो जाएगा? वो 1 by 2 plus 1, यहाँ पे हाफ इंटू 1 by 2 plus 1. हाफ इंटू 1 by 2 plus 1 इज वॉट? 3 by 2. तो हो जाएगा 3 by 4. द सेकेंड रैशनल नंबर इज 3 by 4. नाउ वन मोर रैशनल नंबर आई कैन फाइंड. थर्ड आई कैन फाइंड बिटवीन दिस एंड दिस. सो इट विल बी half into 0 plus 1 by 2. Now if you add it, you get is half into half, which is going to be 1 by 4. So one rational number between these two I get is 1 by 4. Now the fourth rational number you can find anywhere. Okay, I'll find between 0 and 1 by 4. यहाँ पर एक और rational number निकाल लेंगे. क्या हो जाएगा? half into 0 plus 1 by 4, which is half into 1 by 4. 1 by 8. So one more rational I get is 1 by 8.
Now the final fifth one I can find is between 1 and 3 by 4. Here I can find, you can find anywhere, because one remark I give you that there are infinitely many rational numbers between any two given rational numbers, right? So I can find as many rational numbers. I can go ahead, right? 1 plus 3 by 4. क्या होगा आंसर? 7 half into 7 by 4, which is going to be 7 by 8. So here I get is 7 by 8. So finally I found all the 5 rational numbers between the two given rational numbers. Is this method clear? If it's not clear, you can mention in the comment box. I'll do that once. So the first process, the first method, which was by the median average method, ठीक है, इसको बोलते हैं mean या average method. This one should be very very clear to you, super duper clear to you, so that it should be a crystal clear to you, so that next we can move to method number 2. Okay, let's move to method number 2 now. If I have guessed all the possible examples I made you do. Okay, next page, method number 2. Alright, what do we have here? Let's read it. Suppose we are required to find n rational numbers between two given rational numbers, x and y. Then we need to convert the numbers into equivalent rational numbers and then multiply with a suitable number, usually n plus 1. What does this full line mean? Let's see this. Let me take the next page. So let's say I have rational numbers x and y. Okay, I have two rational numbers x and y. यहाँ पे मैंने ले लिया x by a and y by b. ठीक है, rational numbers है ना, तो नीचे denominators लेंगे x by a and y by b. Now what do you see? तो कब अच्छे से लिख देते हैं इसको, मैं मैसी लग रहा होगा. x by a and y by b. ठीक है, तो इसमें पहले तो मुझे इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इन दोनों के बीच मान लो मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. ठीक है, x by a and y by b. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब इनका लाइक डिनोमिनेटर बनाएंगे. कैसे होगा वो? a एंड b का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम ऑफ a एंड b इज ab. तो मुझे क्या करना है, नॉर्मली इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, इसको मैं ab से मल्टीप्लाई करूँ. ab होता है ना एलसीएम, मतलब इसको मैं b से मल्टीप्लाई करूँगी, इसको मैं a से मल्टीप्लाई करूँगी. कि इसका आंसर से मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा डिनोमिनेटर ए बी हो जाए. क्या मल्टीप्लाई करो? बी से मल्टीप्लाई करो. दिस इज व्हाट यू डू नो. एक्स बी बाई ए बी ये हो गया. दूसरा है मेरे पास वाई बाई बी. ठीक है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि ये मेरा हो जाए डिनोमिनेटर ए बी. इससे ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ए बाई ए बी हो गया ये. अब मुझे फाइंड करना है रैशनल नंबर बिटवीन एक्स बी बाई ए बाई बी एंड वाई ए बाई ए बाई बी. ओके, हाउ डू आई डू दैट? सो सी, एक लाइन इसमें लिखी हुई थी कि इसको फिर हम लोग एक सूटेबल n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे. n+1 मतलब होता है मुझे कितना रैशनल नंबर निकालना है, 1 रैशनल नंबर. तो मेरा n हो गया 1. n+1 मतलब हो जाएगा 1 + 1 विच इज 2. ठीक है, तो ये जो फाइनल नंबर आया इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी. 2xb बाई 2ab. ठीक है, यहाँ हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2ya बाई 2ab. ठीक है, गॉट इट. अब इन दोनों के बीच जो नंबर मुझे इजीली मिल जाएगा वो हो जाएगा मेरा रैशनल नंबर. ठीक है, यही आंसर होगा तुम्हारा. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है, एक एग्जाम्पल करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल्स था ना, तो इसमें तो ऑफकोर्स कन्फ्यूजन होगी. थोड़ा सा एग्जाम्पल करेंगे तो ये थोड़ा ईजी हो जाएगा. सी, आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल हियर. यहीं से लेते कोई एग्जाम्पल, थोड़ा इजी सा मैं ही देती हूँ पहले. चलो 0 एंड 1 ही लेते हैं. 0 एंड 1 के बीच लेट्स से मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड करना है. एक तो मैं मीडियन मेथड से निकाल सकती हूँ एंड एक मैं इस मेथड से निकालूंगी. इसका डिनोमिनेटर क्या है, यहाँ तो मेरे पास ऑलरेडी लाइक डिनोमिनेटर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. नाउ हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आई हैव टू फाइंड? 1. सो n मेरा क्या हो गया, 1 हो गया. ठीक है, रैशनल नंबर निकालना है 1. तो किससे? यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑलरेडी है, तो इसको n+1 से मल्टीप्लाई करेंगे. n+1 मतलब 1 + 1 विच इज 2. ठीक है, तो 0/1 × 2 × 2 विच इज 0/2. 1/1 × 2 × 2 विच इज
2/2. Now I had to find one rational number. एक मेरे पास 0/2 हो गया, ये 2/2 हो गया. ठीक है, इसके बीच एक रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? ये तो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो 0 and 1/2. ये तो इजी था, तो खुद ही तुम निकाल लो. 0/2 and 2/2 के बीच अब क्या हो गया? 1/2 हो गया. ऑलराइट, दिस इज वेरी वेरी क्लियर. ठीक है, अब ये क्लियर हो गया तो एग्जाम्पल्स बन जाएंगे. नाउ सी, find 5 rational numbers between 3/4 and 5/4. So let's do it. So my x is 3/4, 1 minute, and y is 5/2. So see, क्या करेंगे? पहले इसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे. क्या ये मेरा ऑलरेडी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर सेम. इक्विवेलेंट मतलब लाइक फ्रैक्शन है ये. क्या ये लाइक फ्रैक्शन है? तो हाँ है. क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है. अब इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? we'll have to multiply it with n plus 1. n is what? 5 राशि निकलना है ना, तो n 5 हो प्लस 1 which is 6. तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. ये हो जाएगा 18/24 एंड ये हो जाएगा 30/24. I had to find out 5 rational number. इजी हो गया. 19/24, 20/24, 21/24, 22/24, 23/24. हो गया 5. I have got 5 rational numbers now. Between any 5 rational numbers I can take between these two and I will get the required answer. So this is the way we solve this. Okay, now see, few more examples are there. Let's do that also. So you see here, ये तो clear हो गया. Now find 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, now my x is what? X is 3 and y is what? 4. Fine. And what is my n? N is 6. So my n here is 6. So I can just write 3/1 है, ये 4/1 है. n plus 1 will be 7. तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 7 से कर देंगे. 21/7, 28/7 के बीच क्या 6 राशनल नंबर आ जाएंगे? 22, 23, 24, 25, 26, 27. नीचे में 7 है सब में. मिल गए मुझे नंबर्स, मिल गए. अब सी, नाउ दिस क्वेश्चन, यहाँ पे एक माइनस में है, एक प्लस में है. ठीक है, -4/11 and 7/11. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क. ये क्वेश्चन तुम मुझे बनाओगे, बनाकर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करोगे. बिकॉज मैंने तो बता दिया अच्छे से. कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर मुझे चाहिए. ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मेथड 2. रिमेंबर इट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मेथड सॉरी व्हाट इज दिस, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ मेथड 2 इज योर होमवर्क. इसको मैं डिस्कस करूंगी नेक्स्ट क्लास में. फाइंड 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -4/11 एंड 7/11. n क्या है? मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. n क्या है? 100 है, तो n plus 1 क्या हो जाएगा? 101. सो इट इज़ वेरी इजी, यू कैन डू इट इजीली. ठीक है, बहुत इजी है, कर लोगे तो ये करोगे. एंड दिस विल बी योर होमवर्क. आई वांट टू सी दिस नेक्स्ट क्लास. ठीक है, चलो. नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट मेथड, दैट इज मेथड नंबर 3. सो मेथड नंबर 3 says, just a minute. हाँ, मेथड नंबर 3 कहता है, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रैशनल नंबर. अगर मुझे n रैशनल नंबर निकालना है किसी 2 रैशनल नंबर के बीच, बिटवीन एनी 2 गिवन रैशनल नंबर, मुझे n रैशनल नंबर निकालना है. ठीक है, एंड व्हाट आर दोस 3 नंबर्स? x एंड y. स्पेशली वैसे रैशनल नंबर जिनका अनलाइक डिनोमिनेटर हो. अभी तक मैंने जितने एग्जांपल्स बताए उसमें कैसे लाइक डिनोमिनेटर थे सब में. ठीक है, लाइक डिनोमिनेटर्स थे. एक ये तो थोड़ा सा हार्ड वाला था, इसमें थोड़े अनलाइक थे, ये कर सकते हो. बट दिस वन यू सी, सब में लाइक डिनोमिनेटर्स ऑलमोस्ट थे. बट ये मेथड हम मोस्टली कर तो सकते हैं सारे फ्रैक्शंस पर, सारे रैशनल नंबर्स पर, बट मोस्टली इसको अनलाइक डिनोमिनेटर वाले रैशनल नंबर्स के साथ करते हैं, जहाँ पर x इज लेस दैन y. ठीक है, तो d की वैल्यू क्या होगी? d बेसिकली एक वेरिएबल मैंने लिया है.
d की वैल्यू क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स बाय एन प्लस वन। इसीलिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्टली ये रूल फॉलो होता है दैट x शुड बी लेस दैन y। ठीक है, ये d निकलेगा मेरा। ठीक है, ये d निकलेगा। जैसे ही मेरा ये वैल्यू d का निकल जाएगा, उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो मेरे n रैशनल नंबर होंगे, मान लो मुझे 2 रैशनल नंबर निकालना है, तो ये d पहले मैं d कैलकुलेट करूंगी। d का वैल्यू अगर मान लो जो भी आए, d का वैल्यू मान लो 10 आ गया, चलो d का वैल्यू रखो d ही। ठीक है, d का वैल्यू d आ गया। इसको निकाल कर d का वैल्यू मेरे पास आ गया। अब मुझे 2 रैशनल नंबर निकालने हैं। ठीक है, तो मेरे 2 रैशनल नंबर, एक हो जाएगा x प्लस डी एंड एक हो जाएगा x प्लस 2d। सिर्फ 2 तक रखना है क्योंकि मुझे सिर्फ 2 निकालने हैं। अगर मुझे 3 निकालना होता तो x प्लस 3d, इफ आई हैड टू टेक आउट 4 सो x प्लस 4d, मतलब तब तक द फॉर्मूला गोज कि x प्लस nd, यहाँ तक मैं निकाल पाऊंगी। ठीक है, लेट्स क्लियर दिस विद एन एग्जाम्पल। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ -2/3 and 3/4. So x is -2/3, y is 3/4. So what is the formula of d? Y minus x by n plus 1. n is what? How many rational numbers we have to find out? 6. So n हो गया मेरा 6. n plus 1 is 7. y minus x. Now let's calculate y minus x. अब ये ऑलरेडी माइनस में है तो -2/3, 4 2 8, 17/12। ठीक है, y माइनस एक्स का वैल्यू 17/12 आया एंड n प्लस 1 का वैल्यू 7 आया। तो 17/12 इंटू 1/7, 17/84। ठीक है, तो एक राशि मेरा d का वैल्यू क्या आ गया, d का वैल्यू आ गया 17/84। ठीक है, इसको अच्छे से लिखता है। d का वैल्यू क्या आया है, 17/84। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग d is 17/84, हाउ मेनी रैशनल नंबर्स आई हैव टू फाइंड आउट, x प्लस 6d तक फाइंड कर, x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, यहाँ तक मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नाउ इट इज इजी। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x? -2/3, -2/3 प्लस d इज प्लस 17/84, ये हो जाएगा x प्लस d का वैल्यू। ठीक है, x प्लस 2d -2/3 प्लस 2 इंटू 17/84। दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। ठीक है, तो यू कैन ऑप्ट दिस मेथड, आई जस्ट हैड टू टेल यू कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, दिस इज द मेथड, नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क अगेन। इसको मैं थोड़ा ट्रिक बताती हूँ। 0 and 0.1 है, 9 निकालना है, तो तुम्हारा थोड़ा बड़ा सा जाएगा ही। 0 and 0.1 है, तो ये तुमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज क्या बताया था, अनलाइक डिनोमिनेटर के साथ ही ये हो सकता है। इफ इट कैन हैपन ओनली विद अनलाइक डिनोमिनेटर, सो वी कैन टेक कन्वर्ट इट 0/1 and 0.1 can be 1/10. Now first यहाँ पे अनलाइक डिनोमिनेटर हो गया। अब नाउ यू कैलकुलेट d का वैल्यू, y माइनस एक्स बाय n प्लस 1, वट एवर योर d's वैल्यू विल कम। हाउ मेनी 9 यू हैव टू फाइंड, सो x प्लस d से लेकर x प्लस 9d तक इसको आपको निकालना पड़ेगा। दैट विल बी योर रैशनल। दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस, quite not effective, but the most effective one was which method, you tell me? Method number 2, right? This was the most efficient, most effective one, very very easy method also. So this, what was that method? Let's quickly rewind that. First method was the mean or average method, where we had to use the formula where x and y were the numbers. Let's say the x and y were the numbers, so the two given rational numbers, one given rational number will be half into x plus y. This is the first method. Second method was the equivalent fraction method, where first we have to convert the rational number into like denominator, and then we have to multiply that to make it an equivalent rational number, multiply that by n plus 1. n is the number of rational number we have to find. And the last method was
D method. That is, suppose we have to find n rational number between any two given rational number. Let's say the rational numbers are x and y, especially those with only unlike denominator, such that x is less than y. So there first we have to calculate the value of D, which is y minus x by n plus 1, and the number of rational numbers can go till x plus D to x plus nd, 2D, 3D, 4D. This x plus D basically means x plus 1D. X plus 1D, x plus 2D, 3D, till that to x plus nd. This will give us the rational number, and that remark which I told you, that there are infinitely many rational numbers between any two rational numbers, right? And now coming to your homework. So what is your homework, everyone? First, from method number 2, you have to solve question number 3. From method number 3, you have to solve question number 1 and 2 again. Okay, this is your homework. And I want the answers in the comment box. मेरे answer चाहिए. So this was it, which was did till today's class. जो 30 मिनट का क्लास हुआ उसमें इतना ही हमने किया है, ठीक है? And I hope this concept was very useful for you. Next class we'll be learning about decimal representation of rational numbers. I hope this much was clear. Okay, everyone, now you can solve your NCERT, and that NCERT exercise number 1.1. Let me see once. Exercise this, exercise number 1.1. We'll discuss that next class. ठीक है, तुम खुद से भी सॉल्व करके रखना, इसको मैं करवाऊंगी. एक अलग वीडियो रहेगा फॉर एक्सरसाइज 1.1. इसको सॉल्व करेंगे in a separate video. And you can also solve exercise 1A of R.S. Agarwal. Along with this exercise 1.1. अब exercise, एक मिनट, 1.1 के साथ साथ ये NCERT के लिए, ये R.S. अग्रवाल के लिए भी एक्सरसाइज 1A यू कैन सॉल्व. ठीक है, इन दोनों को मैं नेक्स्ट क्लास, जो अभी वीडियो आएगा अलग, उसमें पहले ये दोनों डिस्कस होंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, बिकॉज वी हैव टू टेक दीज NCERT सॉल्यूशंस आल्सो टुगेदर. ऑलराइट एवरीवन, okay, thank you and have a happy learning journey and do all the homework which is given to you. All right, thank you very much.